had their lunch. You can reply. I mean, will they be able to reply? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am, we already had our lunch. Okay, so that's great. So, how do you find? I mean, what was the expectation with which you this particular session? Anyone can reply. Like, ma'am, myself, Prijita. Yes, Prijita. Yes, ma'am. Ma'am, as we are students, we don't have much aware of the atmosphere, what happening in the organization or in industries. Till now, we are only aware of the atmosphere of the college. So, if you want to develop our ourselves as an entrepreneur, then we must need to know some information. Like we need to get some inspiration, or we must get some encouragement Okay. from someone So, who is passionate about. We can read book also, and if we are very much privileged as uh, like great people like you and other entrepreneurs came to us and gave us their own experience and shared their own failures and successes. okay. So, thank you, Prijita. So, I think most of you might be thinking in the same way that you would like to get inspired. So, I'm going to start say something on the word called inspired. See, there is no one who can inspire anyone. Only you have to get inspired. Please remember this. You are inspired. You are inspired. Because you are inspired, you are here for this particular session. Because you are inspired, you have taken up the course that you wanted to take. Nobody can inspire anyone. They can guide you, they can advise you. Jita, did I make my point clear? You are inspired, and that is why you spoke. You are Yes, inspired. ma'am. That is why you are Yes, here. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Very So correct. so all here for this for this particular session, you can. And I would like to. I can now. I'm going to start my on time. I'll keep watching my time, so don't worry. I would like. I'm starting my session. Say it is a lecture with Disney's some quote. And he says that all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Now, whenever I take interactive session, I prefer interactive session. I can only speaking. Otherwise, 1.5 hour, I give my thoughts and I give my thoughts, and there is no output from bored. Whether you get bored, I don't know, but I do get bored. So Walt Disney he said, all our dreams true if we have courage to pursue them. Now my question to you, all my participants, why did Walt Disney say this? Anybody can answer? Uh, and I have my pen and notes, I'll make notes. Why did Walt Disney say this? See, there is no wrong answer. Remember that. Everybody is afraid. मेरा जवाब सही होना. No, there is no wrong answer. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Why did he say this? You put your thoughts. Don't go to Walt Disney's anything. Put your thoughts. Why did he say this? I hope everybody can hear me. Hello, ma'am. Yes, madam, you are audible. Yes. Yes, somebody's answering. Yes, ma'am. I couldn't hear you clearly that what you spoke because your voice was breaking up. Okay. The quote was, all our dreams can come true
if we have the courage to pursue them. Do you want me to put this in the chat section? Put in the chat section. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Why did Walt Disney say this? Ma'am, can I? Yes, yes, yes. Go ahead, please. Okay, thank you, ma'am. This is Paras here. Say your name. Okay, Parth. Yes, this is Paras here, ma'am. Am I audible clearly? Yes. Actually, ma'am, this is similarly kind of inspiration that you have just told us that if we want to complete our dream, we can't sit somewhere and we will think like now my dream is completing, now my dream is completing. No, we have to go out of the box. We have to do something. That's called courage. So if we want to complete our dream, we have to do some courage. Like we have to go behind him and we have to go and go, never stops. So that's what kind of thought uh, this this concept. Okay, great, Paras. One more person. There are almost so many participants here. So Hello. one more person. Yes, ma'am. Hello. May I, ma'am? Prijita again. Ma'am, I Yes, yes, think yes. Okay, Prijita. he said so because whenever we dream something big, there are negativities all around, first of all. So we need courage to get out of those all negativities. Suppose if you are thinking to be an entrepreneur, then some people, there will be people who will be pulling us down, that no, you can't do this, it needs a lot of capital, and they will put so many pressure on us that we at a point we will feel that no, I must not do this. What if I fail? So for passing out through all these phases and then succeed, that's the point. I think he might be hello. Okay. Okay. So this is what you think. So whenever I start my any class, tell my participants that there has to be a smile on everybody's face. I hope everybody has got a smile on their face. Okay. So without a smile, there is no maja. Okay. So whatever Prijita said and whatever Paras said, there is they both are correct. As I told you, there is no wrong answer. Prijita said that people put you down. So all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. According to me, now you have to have courage to follow your dream because there will be always an obstacle, and both of them elaborately said very nicely. Because you will have obstacle, you have to face before you reach your dream. And that is why he said all our dreams can come true if you have the courage to pursue them. So yes, come out of the box, face it, have the courage, and your dream will be achieved. Now, I was told that all of you are. I'm going to spell the word. I'm going to spell the word, and Prijita, you will not answer here because I know you will be able. You will be giving me the correct answer. I'm going to spell the word Entrepreneur. Can you? Can someone pronounce this word? And I'm going to put it in the chat section also. I want somebody to pronounce this word. Pronounce this word. Entrepreneur. Ma'am, may I? Yes. Jeel. G. Okay. Entrepreneur. Can you repeat it? Entrepreneur. Okay. Now I'm going to ask Abhay. Abhay, can you say that? Abhay? Because I can see Abhay here. Okay. Um, Aditya? Okay.
Yes, Aditya, you have. Can you unmute yourself and say entrepreneur? Uh, a bit louder. No, I could not hear. Anybody else whose audio is good? May I? Yes. I'm entrepreneur, Pranshu here. Uh, what's your name? Pranshu, ma'am. Pranshu. Can you repeat it? Entrepreneur, ma'am. Why I asked you to say this word is you are in this field, so you should know how to pronounce entrepreneur. That is the reason. This is something like, there is one Yash, there are many Yashes here. So if I ask them, what is your name? My name is Yes. No, your name is not Yes, your name is Yash. So whatever you are doing, you should know how to pronounce what you are doing. That is the reason I asked how to pronounce. Now, in between the class, I am going to ask, how is the Josh? What will you reply together? How's the Josh? Hi, Hi, ma'am. ma'am. Hi, ma'am. Hi. No. How's the Josh? Hi, ma'am. Hi, ma'am. Together. 1, 2, 3. How's the Josh? Hi, ma'am. Okay, great. यस जीएलएस के प्रांगण में आपके घर के आजू बाजू ये सब गूंजना चाहिए. हाउस द जोश? हाय. ओके, सो एवरीबडी नोस. या इन बिटवीन आई विल आस्क. मैं आप लोग को देखूंगी कि आप लोग जग रहे हो कि सो रहे हो. So everybody knows communication is a soft skill. Anybody who does not know communication is a soft skill? It's a soft skill. Even though it is a soft skill, it is a hard skill for success, isn't it? उसको सॉफ्ट स्किल बोला गया है, पर वो हार्ड स्किल है. सक्सेस के लिए हमेशा वो हार्ड स्किल हो जाता है. इट गोज हैंड इन हैंड इन टूडेज बिजनेस एनवायरमेंट. योर that is your whatever you have learned, that is your hard skill, but this is called soft skill. However, I call this as a hard skill for your success. All successful entrepreneurs share same set of skills beside the technical तो आपने 1 साल 2 साल पढ़ लिया होगा, पर ये सॉफ्ट स्किल शायद वेबिनार से, सेमिनार से, या तो आपके फैकल्टीज ने एक्सपर्ट लेक्चर्स लगा के पढ़ाए होंगे. दोज आर सम सॉफ्ट स्किल. ऐसा नहीं है कि यू पीपल डोंट नो. एवरीबडी नोज व्हाट इज सॉफ्ट स्किल. सो कंसिडर दिस सॉफ्ट स्किल एज अ हार्ड स्किल एंड पुट इट इनटू प्रैक्टिस. कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछ लेना. नाउ this set of skills is rather based on your attitude. Soft skill is based on your attitude, the ability to seamlessly interact with others. अगर आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं seamlessly and to communicate the idea in a simple and efficient fashion. मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, मैं ऐसी अंग्रेजी जरूरत नहीं है जो शशि थरूर की है. सिंपल एंड एफिशिएंट फैशन में अगर इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट, दैट इज द बेस्ट वे दैट यू कैन कम्युनिकेट. And this set of skill is relevant because it allows entrepreneurs to share ideas, easier to connect, and more personal level with colleagues, partner, and customer. अभी अगर आपके पास कलीग नहीं है, बाद में आएंगे. पार्टनर नहीं है, बाद में आएंगे. कस्टमर नहीं है, बाद में आएंगे तो सही. बट इट शुड बी वेरी 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 सिंपल ऑफ कम्युनिकेशन. सपोज अगर आपके पास अभी कलीग हैं तो आप उनके साथ कैसे बात करेंगे? पार्टनर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू देम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू देम? Anyone? Yes. Ma'am, I think partner is someone who contributes in our task, or something who encourages us, or something who motivates.
Okay, partner is the one who motivates. Okay, now I'm putting a S after that. Then Partners, then they may be people who are working in a team together to accomplish a particular task or accomplish a something goal. okay, great. Who was it? Ma'am, Prijita. I thought it is you. Okay. प्रिजिता ने ठेका लेके रखा है कि सबके बारे में सबके लिए वो बोलेंगे, बाकी लोग बोलो. सी वन थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ जब मैं क्लास ले रही हूँ या तो आपके फैकल्टीज क्लास ले रहे हैं, अगर आप वहां पे गलती करेंगे तो वो गलती सुधारा जाता है. पर बाहर जाके जब रियल फील्ड में आप गलती करोगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा. ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपने ये गलती की है, इसको सुधारा जाता है. ठीक है. सो प्लीज इंटरैक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं ड्यूअल लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ ताकि सबको समझ में आए. आई होप आई एम अगर किसी को हिंदी में बोलना है तो बोल सकते हो, पर प्योर गुजराती में बोलेंगे तो मुझे तकलीफ होगी थोड़ा मुझे समझने में. Okay, so now I have got another question, another scenario. There is an important meeting going on with the client. किसी client present in this WebEx meeting, you have an important meeting with the client, and the dog is barking. What are your answer by telling your name, because I'm going to write write your name and answers here. An important meeting is going on with your client and the dog is barking. What will you do? Anybody can unmute and answer. Very important that we have two-way communication. आपका बहुत important meeting चल रहा है और कुत्ता भौंक रहा है बाहर. आप क्या करोगे? Ma'am, first of all, we may the very first solution that comes to my mind is to lock ourselves in a room that is that remains isolated from the outside voices. Okay. The answers. Important meeting चल रहा है और कुत्ता भौंक रहा है. Scenario. Ma'am, we can just ignore and not get distracted by them. Ignore. Okay. More answers. हिंदी में भी बोल सकते हो. No problem. I have no problem. કૂતરાને જેને આગું કરી આવી. We should Okay. feed the dog Okay. that I mean, dog away. Shoo the हाँ shoot the dog away. Like problem कोई दूर कर दो ना ताकि आगे Ma'am, प्रॉब्लम ही नहीं दूसरी बार. Yes. I have Yes. one question. Yes. मैम, डॉग क्लाइंट का है कि हम जहाँ से मतलब हमारे साइड बाहर है, घर के बाहर? नहीं, you have an important meeting. You are with the client and the dog is barking outside. मैम, मतलब मेरा ये पूछना है कि डॉग जो है वो क्लाइंट का है कि हमारे घर के बाहर से भौंक रहा है? मेरे को वो पहले क्लियर करना है. अच्छा, नहीं, क्लाइंट का नहीं है. क्लाइंट का नहीं ओके है. मैम. नहीं मैम, तो उसके हिसाब से आंसर देने का पता चले ना. Yes, yes. हाँ, तो अब जवाब दो. वेटिंग. क्लाइंट का नहीं है. स्ट्रे डॉग है या तो किसी और का है, बाहर है. Hello, ma'am. Yes. Maybe we can apologize for the inconvenience which is causing by the street dog because we cannot control this thing. As you also apologized at the very starting of this session, like that. Okay. Anyone else want to answer? Okay. हेलो मैम. Yes. सो हम उससे माफी मांग सकते हैं और 2 मिनट के लिए म्यूट रख सकते हैं हमारा जो कॉल है उसको, और जब तक वो शांत नहीं हो जाता तब तक, और उसको भगा सकते हैं वहां से ताकि फिर से वो नॉइज क्रिएट ना करे. Okay. So
आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने आंसर दिया, इसमें से कोई भी गलत आंसर नहीं है। आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो यू सॉल्व द प्रॉब्लम। कुत्ते को भगाओ, एपोलोजाइज करो, या तो रूम बंद कर दो, या तो इग्नोर कर, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने सोचा उस वक्त। अब यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 जवाब है। आप लोगों ने इस वक्त जो भी जवाब, जो भी सिचुएशन इमेजिन किया, वो बेस्ट इमेजिन किया, तो that is good. So you are solving the problem. Entrepreneurship is also solving the problem the way you can. Now I have another question. Is it okay to fail? Is it okay to fail? इसका हिंदी ट्रांसलेशन Absolutely, में, ma'am. Yes, it's okay to Abs- fail. oh my god, it's okay to fail. और कोई? Yes, yes, ma'am. Because I've heard that if we don't fail, and then it will just boost our ego. So failures are important, and we learn several things from failures also. Okay, so that is a good attitude, that you learn something from the failure. That is the attitude that you should be having, and it is okay to fail. तो मेरा क्वेश्चन ये है, प्रजीता, आई थिंक यू आंसर, राइट? Yes, ma'am. It was me. Okay, so my question to you, Prajita, is will you allow your, शादी हो गए, बच्चे हो गए, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, 5th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, और वो फेल हो गया मैथमेटिक्स में, will you allow him or her to fail? Yes, ma'am. It's या फिर quite. या Yes, ma'am. Because उन पे प्रेशर डालना भी तो अच्छा है, because they will be kids, and फेल हो गिरेंगे तभी तो खड़ा होना सीखेंगे ना। हाँ, तो फिर घर से सब बोलेंगे, अरे तेरा बेटा फेल हो गया, यू आर अ फर्स्ट रैंकर, ये तो फेल हो, ऐसा ऐसा, you know, those kind of pressure will be there. Are you ready to handle it? Yes, ma'am. That's not Okay. a big problem, I think. Okay, so जिन लोगों ने सुन लिया, it is okay to fail. It is okay to fail. सब लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं, you are having that fear of fail. और जिनको ये fear of failure होता है ना, मैं उनको बोलती हूँ, जाओ जाके माउंटेन ड्यू पी के आओ। वो बोलते हैं ना, वो शायद ऋतिक रोशन, डर डर के भगाओ, आगे क्या जीते पीने हैं। से? हाँ, माउंटेन ड्यू पीने से डर भाग जाता है। नहीं, बट आपको ही निकालना है वो डर को, ठीक है? तो अब मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया, ये पेंडेमिक की वजह से यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें एक टॉपिक भी है, इट इज ओके टू फेल, पर मैंने उसमें आधे घंटे, I have spoken for half an hour for that. So your success as an entrepreneur is determined in large part by your ability to communicate. How you communicate. आप कैसे बात करोगे? You can be the best at what you do. आप जो भी करना चाहते हो उसमें आप सबसे बेस्ट हो सकते हैं. Not effectively with clients, staff, and the market, then you are missing opportunities. And as an entrepreneur, मुझे लगता नहीं है कि आपको opportunities miss होना अच्छा लगेगा. So the best thing is learn how to communicate. अब ये 1.5 घंटे में how to communicate मैं नहीं बता सकती, मैं गाइड कर सकती हूँ. Now अगर आपके पास पेन और पेपर है तो मैं जो बोल रही हूँ कर सकते हैं, अभी नहीं. इट इज कॉल्ड व्हील ऑफ लाइफ. इट इज कॉल्ड व्हील ऑफ लाइफ. व्हील जो होता है वो राउंड होता है. किसी ने टेढ़ा मेढ़ा व्हील तो नहीं देखा होगा. व्हील हमेशा राउंड ही होता है, और उस व्हील को आप 10 भाग में डिवाइड कर, ऐसे 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 करके 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए. 10 भाग में डिवाइड करने के बाद हर एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दीजिए, और हर एक वो जो ट्रायंगल है उसमें आप क्या क्या
एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपके पास कुछ ध्येय है, आप उसमें क्या क्या करना चाहते हैं वो लिख लीजिए। शायद मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगेन वेबसाइट, मेरे वेबसाइट में है व्हील ऑफ लाइफ, वो मैंने इंजीनियरिंग बच्चों के लिए ही करवाया था, पर आप उसमें आप अपना डाल सकते हैं कि क्लाइंट के साथ बात करना, पेरेंट्स के साथ बात करना, हाउ टू सेल, हाउ टू एक्वायर, आप जो भी वो लिखना चाहते हैं वो वहां पे लिख दीजिए। फिर अपने आप को रेटिंग दे दीजिए 1 to 10 में। आप सपोज क्लाइंट के साथ बात करने के लिए 1 to 10 में कहाँ पे हो? 5। अगर आप सर्विस 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 में 1 to 10 में आप कहाँ पे हो? 7। तो 5 और 7 के बीच में अगर आपने लाइन ड्रॉ किया तो वो लाइन सर्कल में नहीं आएगा। आपका जो व्हील ऑफ लाइफ है वो आपको सर्कल में लाना है। और ये एक्सरसाइज करने जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इसमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं इसको ज़्यादा फोकस करूँगा तो इसका नंबर आगे बढ़ेगा। और कभी कभी तो कुछ बच्चों व्हील ऑफ लाइफ ऐसे होता है, मैं बताती हूँ आपको। शायद आपको दिखाई देगा। मैं लेट मी सी वेदर यू कैन सी इट। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट। व्हील ऑफ लाइफ कुछ बच्चों का ऐसा होता है, पहिया। अगर ऐसा पहिया आपके 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में डालेंगे तो कैसा लगेगा? गाड़ी आगे बढ़ेगी? टेढ़ा मेढ़ा अगर पहिया हो और वो अगर आपने वो पहिया आपकी गाड़ी में नहीं बढ़ेगी। तो उसी तरह आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपका जो व्हील लाइफ है तो उसको सर्कल में लाना जरूरी है। ठीक है, वो व्हील ऑफ लाइफ एक पर्टिकुलर, वो भी एक 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, पर अगर वेबसाइट में जाके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एट द एंड आई विल गिव यू वेयर इज माय दिस थिंग। नाउ डेवलपिंग द सॉफ्ट स्किल्स needed to succeed as an entrepreneur takes time. टाइम आपको अपने आप को देना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि आज मैंने ये सोचा कि टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस एंड टुमारो आई एम सक्सेसफुल। नो, यू हैव टू गिव टाइम। ये शायद काफी लोगों ने आपको बताया होगा, मैं खाली आपको रिवाइज कर रही हूँ। एंड फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हेन आई से फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप कैसे बैठे हो, आप कैसे खड़े हो, मतलब इन आपको आज से अगर नहीं किया है, स्टार्ट रीडिंग द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको जो सामने वाले को बोलना है वो फ्यू सेंटेंसेस, चंद सेंटेंसेस में आपको उसे खत्म करना है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स यू कैन डू टू एडवांस योर करियर एंड सक्सेस। मतलब आज से या तो अभी से आप लोग का वीडियो बंद है, नहीं तो इट वुड हैव बीन फन। अभी से हर एक का घर पे भाई बहन मम्मी पापा कैसे बैठते हैं, जब ऐसे बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, जब ऐसे खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं। स्टार्ट रीडिंग द बॉडी लैंग्वेज और उस बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाइंट भी वही करते हैं, जब अगर वो ऐसे बैठेंगे तो वो ये सोच रहे होंगे, अगर वो ऐसे खड़े होंगे तो वो ये कर रहे होंगे। You get that experience, and this is one of the powerful thing, reading। and आपको जो सामने वाले को वो चंद शब्दों में या चंद सेंटेंस में आप उसको खत्म करें। So that is again going to give you success. As an entrepreneur, you need lot of skills in your toolbox. आपके पास कुछ टूल बॉक्स होगा, जैसे कि ये कोई टूल बॉक्स है, उस टूल के अंदर आपके पास बहुत सारे स्किल्स होना जरूरी है। कुछ लोग सेल्स के लिए होंगे, कुछ लोग मार्केटिंग के लिए होंगे, बट यू शुड नो लिटिल बिट ऑफ सेल्स, you should know a little bit of marketing, you should know finance, you should have leadership, administration। बहुत सारी चीजें आपको चाहिए क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपके ऊपर आपको बहुत कुछ करना है। तो ये सब चीजें आप ये नहीं बोल सकते हाँ मुझे सेल्स पसंद नहीं है पर मैं मार्केटिंग करूंगा। पर सेल्स में क्या चाहिए तो ही मार्केटिंग करोगे ना। व्हाट इज द यू हैव टू हैव दैट नीड एनालिसिस, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये तो फाइनेंस की जरूरी है, लीडरशिप, ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं।
However, मैं आपको I will touch base each and everything ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए, आपका बेस अगर तैयार हो जाए आप इसके ऊपर घर बना सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू डू दैट. However, one of the most important part of running a business in an industry is communication. ये सब तो चाहिए चाहिए चाहिए. चाहिए, मार्केटिंग वाला चाहिए, फाइनेंस चाहिए, लीडरशिप चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और बहुत कुछ चाहिए. पर एक चीज जो जरूरी है, कम्युनिकेशन नहीं है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. ओके, कहाँ चाहिए? Whether you are trying to convince an investor, इन्वेस्टर को भी तो कन्विंस करना पड़ेगा. चीज आपके पास नहीं होगा, आप एंटरप्रेन्योर बने हो तो शायद आप कन्विंस करना पड़ेगा, आपका आइडिया उनको सेल करना पड़ेगा, उनको परसुएड करना पड़ेगा, कस्टमर्स को परचेज करने के लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कन्विंस करना, सर्विस परचेज करने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा. एंड कभी कभी तो आपके साथ किसी को काम करने के लिए, अच्छा व्यक्ति आपके साथ काम करे उसको भी आपको परसुएड करना पड़ेगा, आपको एंटाइज करना पड़ेगा. ये सब कब होगा? जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो. एंड that is why communication skills are vital for success in number of ways, not only for entrepreneurship, for everywhere. Josh. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Okay, great. All right. So now understanding the body language. Now as I told you, I'm going to touch. मैं थोड़ा touch करके, गुजराती में ऐसा बोलते ना, मैं खो करके जाऊंगी, तो आप वो पकड़ लेना, वो खो पकड़ लेना. ओके, बचपन में खेला हुआ है. अंडरस्टैंडिंग द बॉडी लैंग्वेज. You have probably heard before that most of communication is actually non-verbal. हर कोई बोलता नहीं है. Most of the communication is done non-verbally. However, time do you actually take? आप कितना समय लेते हो ये non-verbal सीखने के लिए? मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया कि आप non-verbal body language ऑब्जर्व करो और उसको, अगर ऐसा हो तो एक नोटबुक बना दो, लिखते जाओ, फिर पढ़, फिर देखो कि आपने सोचा वो बराबर हुआ. देन यू लर्न प्रैक्टिकली बॉडी लैंग्वेज क्या मैसेज देता है. दैट यू कैन लर्न इट बाय योरसेल्फ, फ्री. कहीं जाने की जरूरत नहीं है. डू इट विथ योर फ्रेंड्स, डू इट विथ योर कलीग्स, डू इट विथ योर फैमिली मेंबर्स, एंड देन उनको बोलो आई एम ऑब्जर्विंग. उनको भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुझे देख के क्या लिख रहा है या तो क्या लिख रही है. उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए. बता दो कि यू आर ऑब्जर्विंग, कुछ सीखना चाहते हैं. इन बता दीजिएगा. नाउ मास्टरिंग योर प्रेजेंटेशन. बॉडी लैंग्वेज सीख लिया. नाउ मास्टरिंग योर प्रेजेंटेशन इन नॉन वर्बल वे इज एसेंशियल. कुछ लोग होते हैं ऐसे देख के ही they get impressed. It is non-verbal. Mastering your presentation in a non-verbal way is essential for entrepreneurs. क्यों? ताकि you get the message across the right way. आपका जो वो सही तरीके से उन तक पहुंचना जरूरी है. वो कब पहुंचेगा? जब आपके वर्बल के साथ नॉन वर्बल मैच हो. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. यूजुअली मैं अपने ट्रेनिंग में ये एग्जाम्पल देती हूँ. एक ट्रेनिंग में एक बच्ची बैठी हुई थी. उसको मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो उसने बोला खुशी. मेरा चेहरा देख लेना. उसने बोला, मैंने फिर से पूछा आपका नाम क्या है, तो बोले खुशी. उसका नाम क्या है? खुशी. उसके चेहरे पे कोई खुशी थी, रौनक था? नहीं था. तो आप जो बोल रहे हो, अब समझ में आया ना? वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मैच होना जरूरी है. तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके अंदर से आपका बॉडी लैंग्वेज बता देना चाहिए कि यस यू आर एंजॉयिंग. सामने वाले को ऐसे ही लगना चाहिए कि अरे
ये एंजॉय करके कर रहा है। ओके, सो गेट अक्रॉस द राइट मीनिंग, राइट वे की तरह जाना जरूरी है। कमांड रूम व्हेन यू वांट टू, कभी कभी आप हर चीज ऑफिस में नहीं कर सकते, मतलब हर टॉक, हर बिजनेस आप ऑफिस में नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं बाहर जाके कॉफी पी के, चाय पी के इनफॉर्मली करना है, तो आप ऐसा भी मांग सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। परसुएड अदर्स, मतलब आपको परसुएड तो करना पड़ेगा ही, और परसुएड करना किसको नहीं आता है? बचपन से लेके हम लोग मम्मी पापा को परसुएड ही कर रहे हैं। अगर हमको मूवी देखने जाना है तो हम बोलेंगे मम्मी मैंने मेरा होमवर्क सब खत्म कर लिया, हाँ मैं अब खेलने जाऊं, या तो फिर मैं अच्छे मार्क लाऊंगा, मूवी देखने जाएंगे। यू नो, वी आर परसुएडिंग, हमने ये सीखा हुआ है, पर इसको फॉर्मल वे में आपको मैं फॉर्मल वे में लेने के लिए बात कर रहे हैं। एंड देन when you're observing the body language, you can show empathy. मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रही हूँ, यू कैन शो एम्पैथी। एम्पैथी मतलब अगर कोई दुखी है तो आप उनके साथ दुखी नहीं हो रहे, आप उनको समझ रहे हैं कि वो दुखी है। अगर वो खुश है तो आप समझ रहे हैं कि वो खुश है। अगर वो कंफ्यूज्ड है तो आप समझ रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड है। तो यू कैन, अगर बॉडी लैंग्वेज आपने प्रॉपरली देख लिया तो यू कैन शो एम्पैथी, यू कैन शो एंथुसियाज्म। बच्चों के साथ अगर हम खेलना चाहते हैं तो देयर हैज टू बी एंथुसियाज्म। क्लाइंट के साथ बात करना है तो देयर हैज टू बी एंथुसियाज्म। अगर ऐसा लगा कि ये आइडिया अच्छा नहीं है तो आप डिसप्लेजर भी दिखा सकते हैं, और सामने वाले को समझ में नहीं आया तो आप डिसप्लेजर क्या है वो समझ भी सकते हो। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो सामने क्लाइंट ने कुछ अच्छा काम किया, आई मीन यू कैन टेक प्राइड, आई मीन you can understand all these things: empathy, enthusiasm, displeasure, pride, thanks, respect, attentiveness। ये सब आप समझ सकते हो अगर आपने नॉन वर्बल एक बार मास्टरी कर लिया तो। एंड बाय द वे, नॉन वर्बल इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो ये मत सोचना कि जो बोलने का होता है वही कम्युनिकेशन होता है। आई होप अभी तक मैंने जितना भी बोला सबको समझ में आ रहा है, एंड आई एम गोइंग इन द राइट वे। एनीबॉडी कैन आंसर? 5 नाम है इधर: पारस, प्रजिता, जील, अभय, प्रियंशु। Yes, ma'am. We are exactly getting what you want to say. Okay. Reading human gestures, what he is exactly trying to do. Yes. By the way, I hope everybody has got their smile on your face. This smile सुनाई नहीं दे रहे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are happy to listen Yes. to you. Yes. See, मैं एक और चीज बताती हूँ। ये जो स्माइल है ना, गुजराती में कहा जाता है, मैं मैं गुजराती सीखी भी हूँ, मतलब आई एम लर्निंग गुजराती। गुजराती में चेपी रोग बोलते हैं। अभी कौन सा चेपी रोग चल रहा है? उसी के कारण बैक्स में आए हैं। कोरोना चल रहा है, राइट? अगर मेरे पास कोई कोरोना वाला व्यक्ति होगा तो मैं उसको बोलूंगी हाय, हाउ आर यू डूइंग? मैं ऐसे बोलूंगी? सोशल नहीं डिस्टेंसिंग ना? बोलेंगे आप। राइट। परंतु मैं जिस चेपी रोग की बात करने जा रही हूं वो है स्माइल। बहुत कंटेजियस है, इट इज वेरी कंटेजियस। आपने स्माइल किया, सामने वाला स्माइल करेगा, सामने वाले ने दूसरे को स्माइल, एवरीबॉडी स्माइल्स। अभी आपका क्लास होता ना तो मैं बताती कितनी जल्दी कोरोना से भी फास्ट वो स्प्रेड करता है। वो एक चेपी रोग है, बट बेस्ट चेपी रोग, स्माइल। कीप स्माइलिंग। ओके, सो सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप इंटरेक्शन करते हो बिजनेस सेटिंग में, तो हैव आई कांटेक्ट। आपने सुना भी होगा, आपने किया भी होगा, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई कांटेक्ट
आपने सुना होगा कि आई कांटेक्ट की जरूरत है। अभी मेरा और आपका मतलब मैं तो आपको नहीं देख सकती, आप मुझे देख सकते हो, आप मेरी आंखें देख सकते हो, पर व्हाट इज हैव आई कांटेक्ट? लुक एट पीपल्स आईज। इसका मतलब ये नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एक्चुअली ना वेबएक्स ज्यादा आता नहीं, इसलिए मेरे पास जो 5 नाम है मैं उन्हीं को पकड़ूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पारस की आंखों में आंखें डाल के ऐसे देखूं या प्रजिता की आंखों में आंखें डाल के ऐसे देखो। प्रजिता क्लाइंट है, पारस क्लाइंट है। लुक इन, क्योंकि हमको बोला गया है कि लुक इनटू द आईज, हैव आई कांटेक्ट। नो, आंखों में आंख डालोगे तो कुछ रेज यहाँ से निकलता है, कुछ रेज वहां से निकलता है, फिर वो क्लैश होता है, फिर वो हमें इधर उधर देखना पड़ता है। ऐसा मत करना। हैविंग एन आई कांटेक्ट, जब आप किसी को देखना चाहते हो तो आप यहाँ देखिए या तो फिर यहाँ देखिए आंखों, तो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि आप उनको देख रहे हैं। सो अगर किसी को हैविंग एन आई कांटेक्ट का मीनिंग नहीं पता, मैंने अभी बता दिया। लुक इनटू पर्सन साइज, आंखों में नहीं डालना है, मतलब आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है। यू लुक हियर और यू लुक हियर, तो ऐसा लगेगा कि आप उनको देख रहे हैं। ठीक है। कीपिंग योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स और योर हिप्स। अब मैं बैठी हूं, मैं ये जेस्चर नहीं दिखा सकती। कुछ लोगों को आदत होती है, 2 पॉकेट होता है, 2 पॉकेट के हाथ, दो पॉकेट के अंदर हाथ अंदर घुसा देते हैं, या तो फिर ऐसे खड़े होते हैं। हाँ बोल भाई, तुझे क्या सुनना है, तुझे क्या सुनाना है, मुझे जो सेल करना है। यू नो दिस इज द मीनिंग। एट खराब हो जाता है जब 2 हाथ ऐसे रखते हैं। तो कीपिंग द पॉकेट्स इन योर हैंड, इसका मतलब जब हम छोटे बच्चे थे तो घर पे कोई अनजान व्यक्ति आता था, तो हम अगर मम्मी पापा होते तो मम्मी के सलवार में या तो पापा के पैंट को पकड़ के हम खड़े हो जाते होते। मैं भी खड़ी थी, आप भी शायद खड़े ही होंगे, राइट? जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, करते थे ना हम लोग। कोई अनजान व्यक्ति आता तो हम पीछे छिप जाते थे, होता था ना, कहीं होता Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am, तो होता अब था। हाँ, तो जब अभी तो ना मम्मी है ना पापा है, बड़े हो गए, तो हम किसके पीछे जाके छिपेंगे? नहीं छिप सकते ना। तो छिपने का रास्ता है अपना पॉकेट। ठीक है, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो वो सामने वाले को बता रहे। सो इसका मीनिंग आप समझ रहे? योर हैंड आउट ऑफ योर पॉकेट। सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, जैसे हाथ पॉकेट में जाएगा, अरे यार नहीं, रिमूव इट। जैसे ही आप पॉकेट में हाथ रिमूव करोगे, आप इतना अनकंफर्टेबल फील करोगे, बट दैट इज गुड। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फिर वो ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। सिटिंग एंड स्टैंडिंग स्ट्रेट। आई एम सिटिंग स्ट्रेट राइट नाउ। क्यों बोला जाता है सिटिंग एंड स्टैंडिंग स्ट्रेट? बोलते ना कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। बेस्ट भगवान ने फ्री दिया हुआ है, सीधा बैठो, सीधे खड़े रहो। एक पैर में लंगड़ा के नहीं खड़े रहना है। 2 पैर भगवान ने क्यों दिया है? ताकि आप बैलेंस होके खड़े रहें। जब आप खुद फिजिकली बैलेंस होके खड़े रहेंगे तो आपका माइंड बैलेंस हो जाएगा। समझे? रिफ्रेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम फिजिटिंग। कुछ लोग को आदत होती है पेन खोलने का, बंद करने का, या तो फिर अभी ऐसा पेन नहीं आता है, खोल के बंद करते हैं, खोल के बंद करते हैं, कुछ ना कुछ, या तो फिर ऐसे राउंड ऐसे करते रहते हैं। स्टॉप फिजिटिंग। ठीक है? तो when you are interacting with business setting, okay, thank you very much. So when you are interacting with business setting, have eye contact, keep your hands out of your pocket or hips and sitting straight. ये सिटिंग या तो स्टैंडिंग स्ट्रेट, ये क्यों स्टैंड करना है, क्यों सिट करना है, मैंने आपको बता दिया। एंड रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम फिजिटिंग थिंग्स। कुछ चीजें इधर उधर पड़ी होती है, उससे खेलना बंद करिए। सो my dear participants, how's the Josh? Hi, ma'am. हाय मैम। Higher, ma'am. Hi, ma'am. अब कुछ लोग पता नहीं किसने बोला, ऐसे बोला हाय मैम,
अरे मुझे हाई नहीं लगाना है। फिर से बोलो, हाउस द जोश। Hi, ma'am. यस, एक ही व्यक्ति। Higher, ma'am. ओके, थैंक यू। अब मैं बीच बीच में हाउस द जोश क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बीच बीच में जगाना जरूरी है। अगर क्लासरूम होता तो आई वुड हैव बीन विथ यू, आई वुड हैव बीन कमिंग नेक्स्ट टू यू, टॉकिंग टू यू। अभी ये सब नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग। हमने बॉडी लैंग्वेज देख लिया, लिसनिंग attentively. The next point that I'm going to touch base is listen attentively. Now, if मैं हमेशा बोलती हूँ, if you want to achieve great success, आपको सक्सेस अचीव करना है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। स्टिल मैं बोलूंगी इफ यू वांट टू अचीव, क्योंकि उसमें आपको, उसके अंदर आपका मेहनत है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफ यू वांट टू अचीव ग्रेट सक्सेस एज एन एंटरप्रेन्योर, देन you will most assuredly have to listen attentively. अगर आप सुनोगे नहीं, जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज को मैंने बॉडी लैंग्वेज में बोला कि आप ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, यू आर पेइंग अटेंशन, यू आर लिसनिंग। लिसनिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स बिजनेस शुड लर्न। रीजन मैं बताती हूँ। लिसनिंग इज one of the top most communication skills that business people, मैंने यहाँ पे business people इसलिए बोला क्योंकि आप लोग business करने जा रहे हो, entrepreneurs हो। कहीं और होते तो मैं कुछ और बोलती। should learn as it is useful in so many scenario setting. आपको बहुत सारा scenario setting करना पड़ता है। ये क्या क्या करना पड़ता है, with so many people you have to interact, so you need to have that listening. भगवान ने क्या दिया है? one mouth, two ears, so you need to have, not you, we need to have more. Now, आपने सुना होगा एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि आर यू रियली लिसनिंग टू? जब आप सच्ची में लिसन करते हो तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है वो आप समझ रहे हो। समझोगे तब आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू रिलेट। जैसे खुशी याद रखना हमेशा, ठीक है? अगर किसी का नाम खुशी है तो माफ कर देना। अगर आपके पास अगर आपने ये मास्टर कर लिया, लिसनिंग मास्टर कर लिया, then there are some advantages that you will have. You will pick on current or political problem earlier. Suppose आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, एंटरप्रेन्योर हो, फिर भी आपके पहले कोई व्यक्ति उस कंपनी में गया और कुछ बोला और उसके बोलने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो बिकॉज यू हैव लिसनिंग एबिलिटी, आपने प्रॉब्लम को कैच कर लिया। आपने बॉडी लैंग्वेज स्टडी किया तो आपने वो प्रॉब्लम कैच कर लिया, और प्रॉब्लम कैच कर लिया तो सॉल्यूशन आपके पास है ही। What is this? Lock. हाँ, दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी सिर्फ ताला बनाती है कोई? No. So once you identify the problem, you will have the solution, and the solution is key. देखो, ताले का साइज देखो, ये आपका प्रॉब्लम है, बड़ा है। चाबी की साइज देखो, ये आपका सॉल्यूशन है, छोटा है। तो हमेशा प्रॉब्लम बड़ा होता है और जो सॉल्यूशन है वो छोटा होता है, और वो काफी है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। मिटिगेट रिस्क। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने जो फैक्टर था वो भी छोटा कर दिया, फिर आपने रिस्क फैक्टर छोटा कर दिया तो रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया तो आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जा रहा है। नाउ यू कैन लीड अ टीम। मेरा प्रश्न ये है कि डू यू रिक्वायर अ टीम टू लीड अ टीम? दैट इज माय क्वेश्चन। आंसर yes or no. डू यू रिक्वायर अ टीम टू लीड अ टीम? क्या आपको टीम की जरूरत है? एक
टीम को लीड करने के लिए, यस और नो? Not necessary, ma'am. Ma'am, according to me, there should be that kind of thing because there should be only one admin on one team. Otherwise, decision will be confusing. अच्छा, Every तो everyone will try to take advantage. Like I am admin. अच्छा ठीक है। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गई, पर शायद आप मेरे प्रश्न नहीं समझे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें एक टीम की जरूरत है मुझे उस टीम को लीड करने के लिए? आंसर है यस और नो, कुछ नहीं चाहिए। यस, हाँ हो सकता है ऐसा। हाँ और हो सकता है में बहुत फर्क है। सो आई वांट एन आंसर यस और नो। मैम एग्जैक्टली तो પછી नो आइडिया मैम। आपके पास है आइडिया? मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, आपके पास टीम होना जरूरी है एक टीम को लीड करने के लिए? यस मैम। Obviously, yes, ma'am. यस। एनीबॉडी? देयर इज ओनली वन नो एंड टू yeses, मतलब मेजॉरिटी यस पे जा रहे हैं। Ma'am, Anybody else? ma'am, Prijita again. Ma'am, I think it's not necessary to have a team to lead a team because Yes, of yes, our no, yes, no, communication yes, no, skill. yes, no, yes. Yes, ma'am. No. No, okay. हाँ, because as an entrepreneur we have to have limit, बहुत कम शब्द में हमें बहुत कुछ बोलना है। Anybody else? क्या हमें टीम की जरूरत है टीम लीड करने के लिए? हाँ? मैम पार्शियल नो। No. So 2 no, Final. 2 yes. हाँ, किसी को तो बीच में हो गया, किसी को पिकअप करना पड़ेगा। The answer is no. I'll tell you the reason. The answer is no. Say for example, आज मेरे पास कोई टीम नहीं है, पर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि बाहर के लोग आपके पास आके गाइडेंस लेंगे, तो आप कर रहे हो उनको गाइड करेंगे, तो उनको जब भी प्रॉब्लम आता है तो वो आपके पास आते हैं, तो वो आपकी टीम हो गई। सो यू डोंट नीड टू हैव अ टीम टू लीड अ टीम, आप अकेले भी काम कर सकते हो। समझे? जिन लोगों ने यस बोला, व्हाई इट इज नो, आपको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, ठीक है। अगर आपके पास लिसनिंग स्किल्स है, आप एक मिडिल पर्सन भी बन सकते हैं। सपोज इसने इसकी और इसकी बनती नहीं है, तो आप एक मिडिल पर्सन बन के इसकी और इसकी बना देंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको आप सॉल्व करेंगे, और आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इफ यू हैव द लिसनिंग स्किल्स, सो इम्पोर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स। हाँ, हम पहुंच गए। Okay, so I hope this much is clear to everyone. Listening is particularly important when it comes to dealing with customers, क्योंकि customers हमेशा customers are customers. After all, customers के पास से तो product जाता है. After all, customers के पास तो service जाता है. तो every product and service that you are selling or presenting should have a solution to the problem. Should have the solution to the problem. अगर सॉल्यूशन नहीं है तो बेनिफिट भी बेनिफिट होना, आई मीन सॉल्यूशन तो वही है, जो बेनिफिट है वो सॉल्यूशन ही है। यस, सो बाय लिसनिंग टू क्लाइंट यू कैन मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली वर्क आउट देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सपोज बहुत सारी चीजें हैं, सपोज से फॉर एग्जांपल ये दो या 3 रुपए की पेन है, अगर वो बोले कि मुझे येलो कलर नहीं चाहिए, मुझे लाल कलर चाहिए, आपने कैसे पता किया कि उनको लाल कलर चाहिए? क्योंकि यू वर लिसनिंग, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बोला कि आई ऑलवेज वेयर रेड ड्रेस, आई ऑलवेज वेयर रेड शर्ट व्हेन आई गो फॉर इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो आप बिकॉज यू लिसन, सो देन यू हर्ड द वर्ड रेड, सो यू आर, बिकॉज ऑफ योर लिसनिंग स्किल, आपने उनका प्रॉब्लम समझ लिया और ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और उनको कुछ आपने ऑफरिंग दिया, राइट? सो कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम देंगे,
एक छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। गिव मी वन प्रॉब्लम और सिचुएशन, एनीवन, हिंदी, गुजराती, एनी लैंग्वेज। मुझे एक प्रॉब्लम सिचुएशन चाहिए। मैम, how to handle that person who become very anger? वो एक पर्सन Okay. है जो हमारे पास बहुत ही गुस्से में आया है, बहुत ही भड़का हुआ है, उसको छूना मतलब आग में हाथ डालने जैसा। 440 का वोट लग जाएगा। हाँ। ओके, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज द सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्से में है, तो हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। जैसे वो लिंक ताला बोलते हैं, लिंक ताला एक उसी का चाबी से खुलता है, तो मैं मास्टर की आपको दे रही हूँ। लिखना तो लिख देना, मास्टर की दे रही हूँ। सपोज यू हैव ये प्रॉब्लम एंगर, तो किसने मेरे से बात किया अभी? पारस हियर, दिस इज पारस हियर। पारस, ओके। सो पारस इज वन पर्सन, और सामने वाला व्यक्ति, मैं किसी का भी नाम ले लेती हूँ, अभय। सामने वाला व्यक्ति है अभय, जो गुस्से वाला है, ठीक है। तो पारस, अब आपको क्या करना है? अब आप अभय से बात करना चाहते हैं, या तो अभय से कुछ करवाना चाहते हैं, तो अब पारस विल बिकम अभय। याद रखिएगा, पारस आप अभय बनोगे, अभय के साथ बात नहीं करना है, आप अभय बनोगे, और पारस बैकग्राउंड में, पारस बोलेगा, आप अभय के साथ कम्युनिकेट करोगे। पारस बैकग्राउंड में है और आप अभय के साथ कम्युनिकेट करोगे। जब आप अभय के साथ कम्युनिकेट करोगे, मतलब से फॉर एग्जाम्पल आई एम पारस एंड आई हैव अभय इन फ्रंट, तो मैं बोलूंगी हाय अभय, तो अभय क्या जवाब देगा वो पारस को बोलना है। फिर आपको जो उसके साथ कन्विंस करना है वो आप उससे बोलोगे, फिर उसका जवाब क्या आएगा वो आपको खुद को बोलना है। समझ में आ रहा है पारस? यस यस मैम। अच्छा ठीक है, इतना अगर समझ में आया, मतलब एंड तक जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक आप अभय के साथ कम्युनिकेट करेंगे। फिर वो एक हो गया। अब अभय को बाजू में रखो। अब तीसरा व्यक्ति है जो पारस और अभय दोनों को जानता हो, और इस प्रॉब्लम गुस्सा वाला प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो तीसरा व्यक्ति का नाम क्या लूं? पारस, प्रांशु, ठीक है। तीसरा व्यक्ति है प्रांशु जो है वो पारस को भी जानता है, अभय को भी जानता है। तो अब पारस, आप प्रांशु बनेंगे, आपको प्रांशु के पास जाना नहीं है। सो पारस आपको प्रांशु बनना है, और प्रांशु क्या एडवाइस अभय को देगा, प्रांशु क्या एडवाइस पारस को देगा, वो आपको निकालना है, ठीक है? पारस समझ में आ रहा है? Yes, we got two scenarios, like directly indirectly. हाँ, यस, बट हर जगह पे आप ही सब कुछ कर रहे हो, वो समझ में आ रहा है? हाँ, हर जगह पे आप ही सब कुछ कर रहे हो। अब प्रांशु ने एडवाइस दिया, अच्छा ही एडवाइस देगा, अभय को भी एडवाइस दिया, पारस को भी अच्छा एडवाइस दिया, उसमें से अच्छे पॉइंट्स निकाल लो। अब एक चौथा व्यक्ति वो है जो गार्डियन एंजल उसको बोलते हैं, जो पारस का, अभय का, प्रियांशु का नाम, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? चौथा जो व्यक्ति है वो हम तीनों को जानता है, ऐसा ना? वो तीनों को जानता है। ओके। अब ये जो प्रांशु है वो वाइज मैन है। वाइज मैन समझ गए ना? वाइज मैन मतलब अच्छे एडवाइस देंगे, पारस को भी अभय को भी।
ये जो चौथा है वो पारस, अभय, वाइसमैन दोनों की भलाई ही चाहता है, दोनों की भलाई चाहता है। तो पारस अभी आपको सोचना है कि ये गार्डियन एंजल आपको क्या एडवाइस देगा। ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन। थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पारस का प्रॉब्लम था कि अभय को बहुत गुस्सा आता है। अभय माफ करना, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह ही ले रही हूँ, इसलिए डोंट टेक इट अदरवाइज। सो पारस का प्रॉब्लम था कि अभय बहुत गुस्सा आ रहा है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो पहले पारस अभय बनेगा और अभय के साथ बातचीत करेगा। उसके बाद पारस बनेगा वाइस मैन, जो है प्रांशु, जो पारस को भी जानता है, अभय को भी जानता है। फिर प्रांशु पारस को क्या एडवाइस देगा, प्रांशु अभय को क्या एडवाइस देगा। अच्छा ही एडवाइस लिखना है, नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव एडवाइस। ठीक है। अब इन एडवाइस को सुनते हुए जो चौथा व्यक्ति है गार्डियन एंजल, वो आपको क्या एडवाइस दे रहा है, दैट इज योर सॉल्यूशन। समझे पारस? हेलो पारस, समझे? मैम मैं एक्चुअली सोच रहा था कि पॉजिटिव थॉट्स सोचूंगा तो वो तो गुस्से में है ना अभी, तो वो तो नहीं, सीधा चढ़ाई करने के मूड में है ना, तो मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो वहां से तो मुझे नेगेटिव ही आएगा ना सीधा। नहीं, इसीलिए तो आपको अभय बन के अभय बनना है, उसके बाद प्रांशु बनना है वाइज मैन, उसके बाद गार्डियन एंजल बनना है। ओके एक बार राइट। एक्चुअली आप एक बार ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि देयर इज नो प्रॉब्लम। यस यस मैम, आई वाज डूइंग दैट पैरेलली। ओके, ओके, ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम मैंने मास्टर की आप लोगों को दे दिया है, चाबी मैंने मास्टर की आपको दे दी है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट दैट वक्त आपको बहुत अच्छा फ्रूट देगा। ठीक है। सो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद लिसनिंग भी हो गया, बॉडी लैंग्वेज भी हो गया, ये सब हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग। कैसे प्रेजेंटिंग करेंगे? ऑफ कोर्स in many business situation you will have to find yourself having to present your proposals. आप लोग बोलते हैं you don't have an idea, अगर आइडिया नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप आप कर ही नहीं सकते। हर एक के पास आइडिया है, वो ट्यूबलाइट कब जलती है वो आपको ध्यान रखना है, आपको ऑब्जर्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व। प्रपोजल देना है, आइडियाज देना है, कभी कभी तो डेटा भी देना होता है, या तो दूसरे कुछ लोग बोलते हैं ना कंपिटिटर का इंफॉर्मेशन लेके आओ। अगर क्लाइंट अगर बोले कि कंपिटिटर का इंफॉर्मेशन दो तो आपको कंपिटिटर का इंफॉर्मेशन भी देना पड़ता है। तो प्रपोजल, आइडिया, डेटा, इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट मांगे यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ नाइस करेक्ट whether that may be a potential client or an investor, journalist, employees, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप वाले, या आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी हो सके, यू हैव टू प्रेजेंट इट। एंड हाउ टू प्रेजेंट इट? व्हाई डू यू वांट टू प्रेजेंट इट? क्योंकि आपको एक रिजल्ट चाहिए, यू वांट अ रिजल्ट आउट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। कोई है, मैं प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ या तो जा रही हूँ, मुझे कोई रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो जो करने, मुझे तो मेरा पगार मिल रहा है, या तो फिर मेरा पापा मुझे फंड कर रहे हैं, इट्स ओके। नो, वी नीड रिजल्ट, दैट इज व्हाई वी आर प्रेजेंटिंग। एंड इट इज important for you to be well versed in getting your message across effectively. आप मैसेज कैसे पास कर रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो डिजायर है, आपका जो गोल है, सामने वाले के गोल के साथ वो इफेक्टिव और सही तरीके से सही निशाने पे लगे। So it often takes a lot of practice. It often takes a lot of practice for speakers, not only to get their presentation across with clarity and conciseness. ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी।
जैसे मैंने आपको ENTR एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रोनाउंस करना है मैंने पूछा, उसी तरह आप किसी का नाम यश हो सकता है, किसी का नाम किशन हो सकता है, पर जब यश बोलने का आता है तब आप यस बोलते हो, जब किशन बोलने का आता है तब किशन बोलते हो। क्लैरिटी ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसाइसनेस। सुना होगा शॉर्ट एंड स्वीट, सो योर मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। ये मत समझना कि आपको मिठाई लेके जाना है। ओके वेल, जैसे मैं अभी प्रजीता का एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैंने एक प्रश्न पूछा था यस और नो में, तो प्रजीता वांटेड टू एक्सप्लेन, राइट? सो इट इज टेम्पटिंग, हम टेम्प्ट होते हैं कि हम लंबे लंबे जवाब दें, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। फेस टू फेस अगर सामने कोई मिल गया, फेस टू फेस मीटिंग में हम इन डेप्थ जाना चाहते हैं, हम सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या तो ईमेल में करना चाहते हैं या तो फोन में। बट रिमेंबर, एक चीज याद रखिए कि कोई भी एवरेज ह्यूमन बीइंग है ना, उसका जो अटेंशन स्पैन जो होता है ना, हार्डली 8 सेकेंड का होता है। तो आपको जो भी बोलना है 8 सेकेंड में उसको कैच करना है। यू शुड कैच द पर्सन इन 8 सेकेंड्स। अटेंशन स्पैन मैंने कहीं पढ़ा था, ये अटेंशन स्पैन 8 सेकेंड का होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 90 सेकेंड का होता है, बट देन अगेन आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो इसलिए मैंने बहुत कम कर लिया, 8 सेकेंड्स। ठीक है, सो कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। जो भी प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, एंड देन हैव गुड पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। वायरस कोरोना का वैक्सीन के जैसे हम कॉन्फिडेंस का भी कोई इंजेक्शन लेके आते हैं। अगर कोई इन्वेंट करे तो मुझे बता देना, बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन मांगते हैं। वेयर इज द कॉन्फिडेंस इंजेक्शन? वेयर विल यू फाइंड इट? मैंने एक्चुअली बता दिया, कहाँ मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस? कहाँ से मिलेगा? जायका मैम से मिलेगा, कृपा मैम से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? From within. हाँ, फ्रॉम विद इन, पर कुछ तो करना पड़ता है। वो क्या है? कुछ करने से, बस एक चीज करने से आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ जाता है। वो क्या है? पॉजिटिव नेचर। Sitting straight. सिटिंग स्ट्रेट। जो रीढ़ की हड्डी है, भगवान ने सीधा रखने को बोला है, उसको सीधा रखो। पर हम लोग पोकेमोन खेलते खेलते ऐसे हो गए, उसके पहले पबजी खेलते खेलते ऐसे हो गए। सीधा कर दो उसको, ठीक है? तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा, जो खोया हुआ। ठीक है, वो पुरानी मूवी में नहीं होता है कि दो जुड़वा बच्चे गुम हो जाते हैं, तो जो आपका जो जुड़वा बच्चा जो गुम हो गया था, सीधा बैठ के वापस लेके आओ। वो जुड़वा है कॉन्फिडेंस। ठीक है, और जहाँ पे पावर पॉइंट यूज करना है वहाँ पे पावर पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से भी होता है। यस, शायद आपको दिखेगा, ये मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। Anybody can read this? I don't know whether you can read it. हेलो Hello, दिल्ली। Delhi. हाँ, तो ये क्या है? ये किसका ढक्कन है? मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन। मैं फिर से बताती हूँ, अभी मैंने बता दिया, अभी आपको ऑब्जर्व करना है। अभी आपको बताना है कि ये किसका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एयरलाइंस का एक किसी Airlines का Indigo में भी। एयरलाइंस, हाँ, यस। इसमें कहीं पे लिखा नहीं है ये इंडिगो का है, पर आपने उसको कैच कर लिया कि ये मैं इंडिगो का मतलब एयरलाइंस का मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, पर आप लोगों ने इसको कैच कर लिया। वेरी गुड। सो
a picture is worth 1,000 words. This is what I wanted to say. So keep in mind, a picture is worth 1,000 words. अगर आपके पास कोई ब्रोशर है तो दिखा दीजिए, आपको इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं है. So आपका बहुत पावरफुल रिजल्ट आता है जब पिक्चर दिखाते हैं. There is you connect with the audience verbally and visually. बहुत कुछ लोग होते हैं जो वर्बल होते हैं, कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग कैनेस्थेटिक्स होते हैं. नाउ एक एग्जांपल देती हूँ. जब अभी तो शायद आप लोग बाहर नहीं जा रहे, मैं मार्च के पहले की बात कर रही हूँ. मॉल में या तो कहीं दुकान में कपड़े लेने जाते हो तो काफी लोग ऐसे छूते हैं कि कपड़ा कैसा है. छूने के बाद बोलते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए. ऐसे काफी लोग होंगे यहाँ पे. तो इट इज नथिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग. कुछ लोग होते हैं, मुझे वो कलर दे दो, वो दे दो, ये शर्ट दे दो, ये पैंट दे दो, ये कुर्ता दे दो, ये कुर्ती दे दो, और लेके चले जाएंगे. उनमें भी कोई गलती नहीं है. So you have to understand, there are people who are verbal, there are people who are visual, there are people who are kinesthetically. जो ऐसे लोग होते हैं, तो अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से. ये कब पता चलेगा? When you observe. मैंने इतना सारा, I mean, I spoke so much. इसका मतलब ये नहीं कल से आप बहुत बड़े ऑब्जर्वर हो गए. You have to practice. ठीक है? Practice, 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 practice. There is no shortcut. 4 P's. Practice, 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 practice. Okay. तो listening भी हो गया. अभी एक written ही बाकी है. Communicating via written word. So all communication must have a why. आप क्यों ये लिख रहे हो? You should ask, why am I writing this email? Why am I writing this letter? Why am I sending this email? हर चीज में आप एक WHY पूछोगे तो उसका जवाब आपके पास आ जाएगा. And your answer to that why आपको वो ईमेल लिखने में, लेटर लिखने में, सामने वाले क्लाइंट के साथ इंटरकनेक्शन लाने में, बिजनेस लाने में, ये सब आपको मदद करेगा. इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि यू हैव टू बी परफेक्ट, बट यू नीड टू चेक योर वर्क ऑफ एरर्स. एरर ना हो. कुछ लोग होते हैं ना, टाइप करके छोड़ देते हैं. नहीं, चेक, प्रूफ रीड, स्पेलिंग, जितना हो सके ग्रामर, एंड यूटिलाइज स्पेल चेक अगर चाहिए तो. अगर कोई घर पे अच्छा व्यक्ति है जो प्रूफ रीड कर सकता है, उनको बोलो, या तो फिर कलीग को बोलो, भाई एक बार तो पढ़ लेना, थर्ड पार्टी वगैरह, कि तुझे समझ में आ रहा है. एक बार ईमेल लिखो और आपके कलीग को बोलो, आप ये पढ़ और समझ रहा है कि नहीं. दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग. पर्टिकुलरली ऑन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं. प्रपोजल, आप यू डोंट वांट आपका प्रपोजल डिनाई हो जाए, वो आप नहीं चाहते. आप दिन रात मेहनत करके आप प्रपोजल बना रहे हो, और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको इसको यू डोंट वांट इट टू गेट लॉस्ट. ठीक है? सो प्रूफ रीड. एंड आफ्टर ऑल, व्हाइल यू मे नॉट लाइक इट, शायद आपको पसंद नहीं आता होगा, अगर आपका राइटिंग ठीक नहीं है तो पीपल विल जज यू कि भाई ये इसमें गिरने लायक नहीं है. पीपल विल जज यू. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे. यहाँ से तो ऐसे ही लोग निकलते हैं. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग. आप अकेले नहीं हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़ रहे हो. राइटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. You have to learn to communicate how to write both concise and direct. यहाँ पे भी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है. Be concise and be direct. This helps to ensure that there are fewer chances for readers to misinterpret, misrepresent the words and saves your time. This saves your time. Time तो important है. Time is money बोलते हैं ना. And well-written emails, letter, articles such as more likely to get opened, read, shared, replied, and remembered. मैं कितनी सारी चीजें मैंने एक सेंटेंस में बोला. Well-written emails, letters, articles are much more likely to get opened, read, shared, replied, and remembered. This is what I was saying. Keep it short and sweet. मैं इसको elaborate कर सकती थी. अगर आप लोग अच्छा ईमेल लिखोगे,
टू लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे, एंडिंग लिखोगे। मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, पर आप डिटेल में नहीं जाओगे। स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, आपको समझ में आएगा ना। मोर लाइकली टू गेट ओपन, लेटर ओपन, रेड, शेयर्ड, रिप्लाइड एंड रिमेंबर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटजी। बड़े बड़े शब्द हैं, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटजी। ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। क्या है ये? लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटजी। किसी ज्यादा वक्त नहीं है, मैं किसी को पूछ भी नहीं रही हूँ, ठीक है, समझ लीजिए। लीडरशिप इज डेवलपिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टू बीट द कंपटीशन। मैंने एक सेंटेंस में बोल दिया, बहुत कुछ है इसके अंदर। लीडरशिप इज डेवलपिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टू बीट द कंपटीशन। Second word, entrepreneurship is organizing the firm and taking the risk. And strategy is how you are going to get from where you are now and from where you want to go. That is why it is called interrelated. Leadership, entrepreneurship and strategy. मैं अपना टॉक, मैं इसको लेक्चर नहीं बोलूंगी, I enjoyed talking for 1.5 hour। एंड करना चाहती हूँ एक एग्जाम्पल से। गूगल का एग्जाम्पल लेती हूँ। गूगल जो है, गूगल पुट्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, पुट्स यूजर्स। गूगल किसको फर्स्ट रखता है जब ऑनलाइन सर्विस होता है? यूजर्स को। गूगल एस्पाउसेस, मतलब मुझे इतना बड़ा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था? सिंपल यूज करनी। एस्पाउसेस का मीनिंग है अडैप्ट, दैट इट पुट्स एम्प्लॉइज फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू डेली लाइफ इन ऑल इट्स ऑफिसेस। देखो, गूगल तो गूगल ही है, जब ऑनलाइन सर्विस आता है तो यूजर को रखता है, जब लाइफ इन द ऑफिस तो वो एम्प्लॉइज को रखता है। यस, this is an emphasis on team achievement and pride in individual accomplishment that contribute to the company's overall success। क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पे सबसे पहले स्टेप लेने का, कहाँ पे क्या करने का, कहाँ पे ट्रेड करने का, कहाँ पे टेस्ट करने का, कहाँ पे स्विफ्ट होने का, कहाँ पे डिजिंग होने का, ये सब गूगल को पता है। आइडियाज, बिकॉज दे ट्रेड दिस। और ये जो चीज़ें हैं वो सब टाइम टेस्टेड भी है। तो थोड़ा I might have spoken little more। At the end of the day, whether you are speaking to investors, customers, employees, how you communicate matters। मैंने बताया आपको ऑब्जर्व करना है, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करके यू टू लिसन। आपका रिटन और दोनों अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, ये सब मैंने थोड़ा टच बेस किया विद सम एग्जांपल्स। और सिंस यू आर डूइंग मास्टर्स, यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स में टेक सम टाइम। तो वो वक्त आप अपने आप को दो। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कोई लेके नहीं जाएगा, ये कोई शेयर मार्केट लेके नहीं जाएगा। इट इज वेल वर्थ। ठीक है, इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स में टेक सम टाइम। इसको इन्वेस्टमेंट समझिए, और इट इज वर्थ एंड गिव इट एन एफर्ट। ठीक है, एंड एज यू डेवलप एंड प्रैक्टिस दीज टेक्निक ऑन अ डेली बेसिस, हर रोज करना पड़ेगा। ऐसा खाना भी तो हम हर रोज खाते हैं ना, हमने आज ज्यादा खाना खा लिया तो एक हफ्ते के लिए हम छोड़ दे, नहीं, सही मात्रा में। एज यू डेवलप एंड प्रैक्टिस दीज टेक्निक ऑन डेली बेसिस, यू विल बी बेटर equipped to build stronger relationship। Entrepreneurship में relationship build भी important है। Achieve greater results and win more influences in your businesses। तो मैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे रही हूँ। एंड एक्चुअली मैंने जायका मैम को बोला था कि
मेरा वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, पर मैंने अपने वेबसाइट में गूगल साइट है। Hello, ma'am. यस Zakia here. यस मैम। Oh, thank you so much spending your valuable time to our students. Fine. आपका प्रेजेंटेशन नहीं, आपकी टॉक बहुत बेहतरीन थी. मैंने भी बहुत Thank सुनी है, and I also learned so many things from you. Fine. So thank you so much, ma'am. और आई एम श्योर हमारे मास्टर्स के बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा. आई होप सो। हाँ, no, definitely. Write in chat. आप लिख सकते हो. Have you enjoyed the session? Yes, ma'am. We have enjoyed a lot. Okay. So thank you so much, ma'am. And my name is Zakia. Zakia, okay. Yes. And the meaning of Zakia is it's like a pure. It's a name of Allah. And Great, Zaika great. means the meaning of Zaika is taste. Yes. So Arabic is I'm so very sorry. difficult. No, Arabic is very difficult. There is alif and a. There is a difference. Matlab as Yes. language. So that is why this happens, ma'am. So no issue. Okay. So it's a thank you very lighter much. side. Yeah. Thank you so much, ma'am. And we are so fortunate that we found you